Hello everyone, this is the unknown astrologer. As promised last week, today we start the first video on this channel. This video will be about determining professions. How do we actually see career of a native via his or her horoscope? What are the basic rules? What are the advanced rules? How do we actually, jot it down? कैसे करके लास्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं? How do we narrow down to two or three professions, and then how do we finally come that this is the right field of work for this particular individual? Now, I was actually going through my earlier videos, which I made for Saptarshis astrology, and I saw that video which I did 7 years back, and the pointers which I have, spoken about. Today, what we'll try to do is we will start from that, and then we'll try to go deeper into two horoscopes. So now the दो charts हैं मेरे पास. I'll try to keep this podcast, this channel in Hindi and English both, because a lot of people who follow me, who know me, are from out of India. So I'll try to juggle between the two languages I know. So I have two charts. One chart is of an Air Force officer. ये वही chart है जो हमने 7 साल पहले, which we saw, but that person's life has, all obviously he has moved on. He has done a lot, many things. He has been promoted multiple times, and dashas have changed. So we will try to go through those dashas, see those dashas कि कब क्या हुआ, क्यों हुआ. And the second chart is of an army officer, and that person is much older than the Air Force guy. He, he has also spent a lot of years in the service, so we can see, we'll try to understand both those charts. दोनों charts बहुत different हैं एक दूसरे से, despite the fact that they are both in armed forces. Both are in the Indian part of the Indian, you know armed forces, but chart बहुत अलग हैं. कुछ चीज़ें common हैं, कुछ चीज़ें different हैं. We'll try to understand how do we actually get down to the final word कि ये career किसको suit करने वाला है. And if you guys want to become an army officer, an air force officer, or a navy officer, I think this video will be definitely helpful to you guys. Now, before we get to those charts, let's just first understand how do we see career, via Vedic astrology. What are the parameters? What are the factors which are important? So, as we all know, I'm expecting the people, the listeners of this podcast, to have the basic knowledge of astrology. They already have that, I believe. I will also make a few videos which are at the very basic level, but that will happen in some time. Right now, because I'm, diving into careers, so let's just expect that you have the basic understanding. So all of us know that 10th house is the house of profession, right? What I have also seen is that 10th house is actually the house of profession. That is correct, but what does, how to define that? I would define it by saying that this is the house, and which shows that how will you be known in the society. By that I mean कि कोई कहेगा कि यार ये टीचर है, कोई कहेगा कि ये एयरफोर्स ऑफिसर है, ये ड्राइवर है, ये प्लम्बर है, या कुछ और है, ये बिजनेसमैन है, ये बेकरी वाला है, ये मीट वाला है, ये कारपेंटर है, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है. तो पब्लिक आपको कैसे देखती है, समाज आपको कैसे देखता है, वो हमको पता चलता है 10th हाउस से, which essentially is what you do, right? What you do in the public eye. A lot of people do multiple things these days. Certain things are not in the public eye, which they do just to make some, extra money, which could be their side hustle, or that could be somebody's passion. वो सब 10th हाउस से नहीं दिखेगा. So to make it very simple, whatever meets the public eye is what the 10th house shows. Okay. इसीलिए उसको फेम और रैंक और अथॉरिटी, स्टेटस, इन सब का कारक बोला 10th हाउस को. स्टेटस का मतलब वही है कि लोग सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है. क्यों? जो कि ये डॉक्टर है,
या ये बहुत अच्छे टीचर हैं, क्यों, जो कि ये इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, या ये इतने बड़े कॉलेज के टीचर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो अगेन, स्टेटस, रैंक, पोजीशन, प्रोफेशन, करियर, everything from the 10th house. Okay, 10th house, जब the moment we say 10th house, we imply the 10th lord as well. 10th house is, I mean, for me at least, in my, on my channel, in my podcasts, whenever I say any house, you have to understand that it means the house and the house lord both. Okay, because the house lord is the one which makes connections with other houses. So दोनों को ही देखना है. 10th house lord, primary importance for the career. Okay, now apart from that, होता क्या है कि 10th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो कहीं तो बैठेगा, शायद 10th में ही बैठा हो, बट कहीं और भी बैठ सकता है. कोई और लॉर्ड भी 10th में आके बैठ सकता है. 10th हाउस का लॉर्ड किसी और हाउस का भी लॉर्ड हो सकता है, बिकॉज ऑल प्लैनेट्स own two houses except the sun and the moon. So all other planets own two houses, own two rashis. So two rashis will fall into two different houses. तो इस वजह से हाउस कनेक्शन बनाता है हमेशा. एस्ट्रोलॉजी का पूरा मतलब ही ये है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है कि कनेक्शन क्या बन रहे हैं आपके अलग अलग हाउसेस में. तो मेरी रिसर्च में मैंने ये देखा, ये मैंने 7 साल पहले भी बोला है, अभी भी मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूँ. इनफैक्ट मेरा इसके ऊपर विश्वास और बढ़ गया है कि हाउस कनेक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लैनेट कनेक्शंस. इसका मतलब क्या है? 10th लॉर्ड आपका, मान लो मर्करी के साथ बैठा है, ये एक रिजल्ट देगा. पर 10th लॉर्ड और मर्करी दोनों मिला के सेकेंड हाउस में बैठे हैं, सेकेंड हाउस का एक एलिमेंट आएगा उसमें. तो हमारे लिए प्रायोरिटी के ऑर्डर में सेकेंड हाउस से जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और मर्करी से जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ होगा वो सेकेंड होगा इम्पोर्टेंस में. ओके, अगर अकेला बैठा है सेकेंड हाउस में जाके तो तब तो खैर प्लैनेट का इंटरेक्शन की बात ही नहीं है. इसी तरह से 10th लॉर्ड कोई प्लैनेट होगा, मान लो 10th लॉर्ड सन है, तो सन के जो करियर होते हैं, सन से जो करियर बनता है, मान लो सन से हम कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, मान लेते हैं, कॉमन नॉलेज है इसलिए मान लेते हैं, आई डोंट अग्री कम्प्लीटली, बट चलो मान लेते हैं सन से गवर्नमेंट जॉब है. अब जाके 10th लॉर्ड बैठ गया है आपके 5th हाउस में. 5th हाउस से मान लो टीचिंग है, मान लो 5th इज द हाउस ऑफ एजुकेशन, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा कि ये इंसान टीचर पहले हो सकता है. मैं पहले उसको प्रिडिक्ट करूंगा, मेरे प्रिडिक्शन के पैकिंग ऑर्डर में टीचिंग पहले होगा, और सन वाले इन्फ्लुएंस बाद में होंगे, हाउस वाले इन्फ्लुएंस पहले होंगे. हमेशा हाउस बिफोर द प्लैनेट इज रूल नंबर 1 व्हेन यू डिटर्मिन, ट्राई टू डिटर्मिन करियर्स इन एस्ट्रोलॉजी. ओके, सो दिस इज़ वन. मतलब 10th हाउस कैसा है, नंबर 1. नंबर 2, 10th हाउस के कनेक्शन दूसरे किस हाउस से बन रहे हैं, और उस हाउस के जो, उस भाव के जो कारकत्व हैं वो करियर डिफाइन करेंगे. नंबर 3, वो किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये सब उसके बाद आएगा. तो एक बात हो गई 10th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड एंड इट्स कनेक्शंस विद अदर हाउसेस इन द D1 चार्ट. Number 2 is the connection or the placement of the 10th lord of D1 chart in D9 नवमांश चार्ट. 10th lord of D1 चार्ट नवमांश चार्ट में किस राशि में बैठता है और किस भाव में बैठता है, किस हाउस में बैठता है, D9 के किस हाउस में बैठता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है करियर को निकालने के प्रोसेस में. मतलब कि अगर आपका 10th लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट नवमांश में लीब्रा में बैठता है, और लीब्रा हैपन्स टू बी लेट्स से द 4th हाउस, तो यहाँ से एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो सकता है कि आप 4th हाउस से रिलेटेड बिजनेस में जा सकते हो, यानी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हाउस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मासेस, मीडिया. 4th हाउस में बैठा नवमांश में जाके, और लीब्रा में बैठा, तो लीब्रा की एनर्जीज, लीब्रा जो भी दिखाता है, लीब्रा 7th साइन है, वीनस का साइन है, तो वो दिखाता है बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, मीडिया, डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लीब्रा और 4th हाउस की एनर्जी भी आपके करियर को इम्पैक्ट कर रही है. ओके,
बट दिस विल ऑलवेज बी सेकेंड टू द D1 इन्फेरेंसेस। तो D1 से जो निकला, फिर D9 से निकला, फिर D10 से निकला। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। D10 में जाके देख लेते हैं करियर क्या होगा। D10 अकेले करियर डिसाइड नहीं करता। हमेशा D1 एक ब्रॉड बाउंड्री सेट करता है। मान लो D1 चार्ट, लग्न चार्ट ने बताया कि भाई ये 6 करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। D9 ने उस 6 में से आपको 2 हटा दिए, बोला कि नहीं यार ये 4 ही हैं। फिर D10 में देखा और उस 4 में से हम 1 या 2 ऑप्शन निकाल सकते हैं। इस तरह से शॉर्टलिस्ट होता जाएगा कि इतने सारे करियर्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं और ये हो सकते हैं। तो जो आखिरी में जो निकलेगा वो आप कंक्लूड करोगे और वो उस नेटिव को आप प्रिडिक्ट करोगे कि आपका ये 2 करियर ऑप्शंस हैं। मैं अपने कंसल्टेशंस में हमेशा कोशिश करता हूँ कि 2 आंसर दूँ, 2 से ज़्यादा ना दूँ। क्योंकि जब कोई इंसान मेरे पास आया है तो वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। एक कंफ्यूज्ड इंसान को अगर मैं 4 करियर ऑप्शंस दे दूँ तो कंसल्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स लाइक वेस्टिंग हिज टाइम एंड हिज मनी। So you should always try to go down to 2 options. The process is simple: D1, D9, D10. D10 कैसे देखना है? This is a separate topic, but let's try to take an overview of D10, how to see the D10 chart, and then we will move to a few chart examples so that we have a better understanding. So D10 में जो सबसे important factor है, factors तो बहुत सारे हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें यूज़ करना है, जो टूल हमें यूज़ करना है, वो है कि D10 D1 के कौन से हाउस से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मान लो आपका D1 चार्ट मेष लग्न का है, एरीज असेंडेंट इज योर D1 चार्ट, लेट्स से, ओके, लेट्स assume, and your D10 chart is, the lagna of the D10 chart is Leo. That means that the D10 is starting from the 5th house of D1. So the 5th house related careers become possible or more prominent for you. So again, let's just take another example, because Aries ascendant becomes a way to simplistic thing to understand. So let's say your D1 is of Leo Lagna, for example, and your D10 is of Libra Lagna. That means that your D10 is starting from the 3rd house of D1. So that means the 3rd house professions is what the D10 is trying to tell you, which fall under the Libra domain. 3rd house and Libra. मतलब क्या हुआ? जैसे कि communication related काम, but communication is artistic in nature, creative in nature, because 3rd house is communication, Libra is creative, artistic, or business, dealings driven. So जब भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से योर D1 इज ऑफ Virgo ascendant. Okay, Virgo ascendant is 6. Rashi number 6 is the rising sign, and D10 becomes Capricorn ascendant. That means that your career is cut out from the 5th house of D1. तो जो D1 का 5th house है, that becomes the 1st house of D10. That means that the 5th house related professions are, is what the D10 is trying to show you at the surface, at the top level. Now 5th house professions: education, creativity, art, craft, basic level, right? Public finance. So ये 5th house से निकल के आया, जो कि D10 इज कैप्रिकॉन एंड D1 इज वर्गो। तो जो भी D1 असेंडेंट है और जो भी D10 असेंडेंट है, हमें देखना है D10 असेंडेंट D1 के कौन से भाव को से कनेक्ट हो रहा है, कौन से भाव से बन रहा है, कौन से हाउस से बन रहा है। अगेन हाउस बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर. नंबर 2 इज द राशि एंड देन द प्लैनेट्स एक्सेट्रा. Okay, so we discussed 3 major factors. Number 1, D1 chart. In D1 chart we will see the 10th house and the connection of 10th house with other houses, and we have to shortlist those career possibilities and also the planetary combinations with the 10th house. So we have to shortlist. Let's say we come to 10 career possibilities from D1.
Then we go to D9, we see where the 10th lord of D1 sits in D9, which house and which Rashi. So we might get 4, 5, 6, 7, let's say 7 more career possibilities. And then we have to see the common ones in D1 and D9. So we might get 5 common themes. Then we go to D10 and we see from which house of D10 the Lagna is starting. That will give us 2, 3 more or 2, 3 similar career possibilities. So we then that will help us in finalizing the last 2 or last 3 or last 4, whatever depends on your level of expertise, कि कितना मिनिमाइज कर सकते हो उसके दायरे को, करियर के दायरे को कितना छोटा कर सकते हो. दैट विल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. इतना करने के बाद ऑफ कोर्स देर आर अदर फैक्टर्स लाइक कि भाई D10 के लग्न में कौन सा प्लानट बैठा है, D10 के 10th हाउस में कौन सा प्लानट बैठा है, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट है. बट ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई वो दे आर गुड इनफ टू गाइड समबडी यू नो. Okay, as the important factor is that guide somebody you know. इतना तो sufficient है. Why it is? Because it will give you a very narrow फिल्टर कि हाँ यार ये करियर होना चाहिए, इसमें ट्राई करोगे तो अच्छा है. एंड सिंस यू नो दैट पर्सन, यू वुड नो कि वो क्या चाहता है, तो यू कैन रियली गाइड हिम वेल. प्रिडिक्ट अभी भी शायद ना कर पाओ, लेकिन गाइड कर पाओगे. प्रिडिक्ट करने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए. अब उसके बाद एक और फैक्टर है जो हमारे 4-5 ऑप्शंस को एकदम से शॉर्टलिस्ट करके 2 या 1 में ले आता है. अगर इन 3 स्टेप्स के बाद भी आपके पास 4, लेट्स से 5 करियर ऑप्शंस बन रहे हैं, एक फैक्टर ऐसा है जो 5 को काट के सीधे 2 में या 1 में भी ला सकता है, फाइन ट्यून कर देगा आपके प्रोडिक्शन को. वो है द रनिंग दशा. दशा सुप्रीम है, दशा से बढ़कर कुछ नहीं है. दशा इज़ द ओनली डायनेमिक फैक्टर ऑफ योर हॉरोस्कोप. कुंडली वही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा. दशा बदल जाएगी, इंसान बदल जाएगा, इन्वायरमेंट बदल जाएगा, उसका नेचर बदल जाएगा, उसका डेली रूटीन बदल जाएगा. So Dasha plays a very important role. If somebody is 18, 19 and you see a 20-year long Venus Dasha coming or a 19-year long Saturn Dasha coming और राहु दशा कमिंग, और आपके पास 4 करियर के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये दशा 4 में से 1 या 2 की तरफ आपको कन्विंसिंग आंसर मिलेगा द मोमेंट यू ट्राई टू इंक्लूड दशा इन योर एनालिसिस ऑफ समबडीज लाइफ. ठीक है, ये इतना तो मैंने 7 साल पहले के वीडियोस में बताया. मैंने आज फिर से देखा बिकॉज आई फॉरगॉट कि मैंने क्या क्या बोला है, कितना बोला है, कैसे बोला है. सो आई सॉ दैट अगेन. दैट वाज इन 2017, दिस इज़ 2024, ऑलमोस्ट 2025. 7 से 8 साल हो गए. सो और तब तक की मेरी रिसर्च ऑनेस्टली उतनी ही थी. मैंने कुछ छुपाया नहीं था. उसके बाद इधर मैंने, क्योंकि इट्स रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी इज़ एन ऑन गोइंग थिंग, यू कैन नॉट रियली स्टॉप इट. जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये होती रहेगी. और जितना भी मुझे आ जाता है उससे ज़्यादा आज से 5 साल बाद आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ेगा. मेरे साथ के लोग अलग अलग करियर्स में जाएंगे, कुछ चेंज करेंगे, कुछ उसी में ग्रो करेंगे, कुछ फॉल करेंगे, तो समझ में आता रहेगा. उनकी लाइफ आप फॉलो करते हो, समझ में आता है कि क्यों हो रहा है. राइट. एंड इट बिकम्स लाइक अ बुक, कि ये बुक मैंने आज पढ़ी थी, 5 साल बाद फिर पढ़ ली, समझ में आ गया अच्छा बीच में क्या हुआ होगा, या उसने बता दिया मुझे क्या हुआ था. सो ये 4 फैक्टर्स के बाद एक और फैक्टर है जो मुझे पता पहले भी था, बट उसको यूज़ कैसे करना है मुझे आता ही नहीं था. एंड मैं आई कैन ऑल्सो से दिस विद अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी कि इधर इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में जब मैं सोच रहा था कि आई शुड कम अप विद माई ओन चैनल, तो मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे फिर से पढ़ा. मैंने बहुत सारे चैनल्स पे अलग अलग लोगों के वीडियोस देखे. कुछ एस्ट्रोलॉजर जो पहले भी थे वो बहुत इम्प्रूव भी हो गए हैं, आई मस्ट से दैट. कुछ लोग नहीं इम्प्रूव हुए हैं, कुछ नए हैं जो कुछ भी बकवास भी कर रहे हैं. बट आई अंडरस्टूड दैट चंद्र लगन किसी को पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है. एंड मुझे भी पता नहीं था चंद्र लगन. ये भी मुझे अवेकनिंग इसकी इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हुई है. तो इन सब के बाद चंद्र लग्न एक फैक्टर है विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट करियर. बस सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट इन करियर. चंद्र लगन कैसे देखना है ये लोगों को नहीं आता है. और ये बड़ा मतलब इट्स अ वेरी tricky thing, and I don't know if there is a sutra
विच एक्चुअली डिफाइंस इट, बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं है, बट एक्सपीरियंस से मैंने समझा है कि इसको कैसे देखना है. आई विल शेयर दैट विद यू, एंड आई कैन डू अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू यूज चंद्र लगना एंड सूर्य लगना इन योर एनालिसिस. नाउ चंद्र लग्न को मैं भी, और मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे मैं पहले मिलता भी था, वो भी वो भी और सभी लोग इन आइसोलेशन देखते थे कि यार ये जन्म लगन है, ये चंद्र लगन है, ये सूर्य लगन है. आपका जन्म लगन एरीज है, चंद्र लगन लियो है, सूर्य लगन टॉरस है, राइट. तो जो एरीज से 10th हाउस कैप्रिकॉर्न है, आपका करियर शुड बी कैप्रिकॉर्न से डिफाइन होता है. लियो से 10th हाउस टॉरस है, और टॉरस से 10th हाउस एक्वेरियस है. तो भाई पता नहीं क्या करियर होगा इंसान का. ये तो तीन तीन बड़े ही मतलब बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही वेरीड पॉसिबिलिटीज़ बना रही हैं, बन रहे हैं यहाँ पे. उतने सारे एस्पेक्ट, उतने सारे कंजंक्शंस, हर चीज़ इतनी ज़्यादा. तो इससे तो कुछ भी नहीं सर. और लाइफ में कोई भी और फैक्टर भी देखना है कि भाई 7th हाउस कैसा है, वाइफ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, वो सब भी इसी तरह से तीन तीन वेरिएबल में फंक्शन कर रहा है. सो बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, तो मुझे लगा यार जैसे एज आई सेड माई अप्रोच वाज ऑलवेज टू नैरो इट डाउन एंड यूज़ द टूल विच एड्स इन प्रिडिक्शन. आई ऑलवेज से कि जो टूल आपको प्रिडिक्शन में हेल्प करे उसको यूज़ करो, जो ना हेल्प करे उसको मत यूज़ करो. जो कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास 500 टूल्स हैं, हमको रियल लाइफ में कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए 500 में से शायद 50 ही चाहिए. बट ऐसा नहीं कि बाकी 450 बेकार हैं, वो कोई और इंसान यूज़ कर पाएगा जो कि उसका माइंड वैसे वायर्ड होगा जो बाकी टूल्स को यूज़ कर पाएगा. तो मुझे लगा यार चंद्र लगन 2 दिन तक सेम, सूर्य लगन 1 महीने तक सेम, और जन्म लगन 2 घंटे तक सेम. तो सबसे ज़्यादा फाइन ट्यून तो जन्म लगन है. सो लेट्स जस्ट यूज़ दैट विच एवरीबडी डज, विच एंड दिस बिकम्स योर आइडेंटिटी. तो यही सही है, सही भी है, तो कुछ गलत नहीं है. तो चंद्र लगन को मैंने निगलेक्ट भी किया या कम यूज़ किया, ये समझा ही नहीं कि कैसे यूज़ करना है. बट देन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर समथिंग हैज़ हैपेंड एंड वन फाइन डे आई जस्ट रियलाइज दैट ये ऐसे यूज़ होता है, और हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि हमको पता ही नहीं कि कैसे यूज़ होता है. हमेशा क्लासिक्स में सुदर्शन चक्र की बात हुई है, इन विच दे से कि देयर इज अ चक्रा जिसके ऊपर जन्म लगन, उसके बाद आउटर रिंग पे चंद्र लगन, और उसके आउटर रिंग पे सूर्य लगन, या वैसे वर्षा, ऐसे तीनों लगन एक सर्किल के ऊपर मैप्ड रहते थे. जैसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी कुंडली जब मिलती थी तो ऐसे ही मिलती थी. तो उससे मुझे कुछ समझ में आया, या पता नहीं कैसे समझ में आया, बिकॉज जस्ट कीप थिंकिंग समडे यू गेट समथिंग कि यार ये तो ऐसे यूज़ होगा. अब होगा कैसे, चलो ये बता देता हूँ, बहुत सस्पेंस भी हो गया. अगर आपका जन्म लगन एरीज है, राइट, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, चंद्र लगन, चंद्र राशि यानी कि लियो है, 5th में सन है, ओके. अब चंद्रमा कौन सा प्रोफेशन दिखा रहा है, चंद्रमा से जो 10th हाउस है वो है टॉरस, करेक्ट. जन्म लगन का मतलब चंद्रमा से 10th हाउस इज द सेकेंड हाउस ऑफ D1. सो बेसिकली सेकेंड हाउस का करियर है. चंद्रमा से 10th को हम चंद्रमा से या सूर्य से जो भी हाउस पे जा रहे हैं, हमें उसको सुपर इम्पोज करना है ऑन ऑन द D1 चार्ट. आइसोलेशन में नहीं देखना है, जो कि आइसोलेशन में देखोगे तो 1 साल तक, 1 महीने तक सेम है सूर्य लगन, चंद्रमा 2 दिन तक सेम है, सबका सेम थोड़ा ना होगा. जो कि जन्म लगन बदल जाएंगे. तो जब सुपर इम्पोज करके देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है इसमें. फॉर एग्जाम्पल, ये हुआ कैसे, जब मून 6th में होता है किसी का भी, आप देखो कि मून 6th हाउस में प्लेस्ड है D1 से. यू गैस कैन चेक दिस इन द पीपल यू नो. तो यू विल फाइंड कि जो उनका वाइफ है, जो स्पाउस है, उस वो एक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से, डिफरेंट एथनिसिटी से, डिफरेंट कास्ट से, या डिफरेंट सिटी से. जैसे आप मान लो भोपाल के हो, और वो लड़की जो है वाइफ है आपकी वो मुंबई की है, जिसका अपब्रिंगिंग बहुत अलग है. एक डिफरेंट वर्ल्ड से आई हुई या आया हुआ स्पाउस आपको मिलता है जब मून 6th में होता है. हम लोग कैसे देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज, कि जन्म लगन से 7th हाउस में राहु बैठा है,
सेवन्थ हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है, सेवन्थ हाउस गड़बड़ है, केतु बैठा है, सैटर्न बैठा है, ऐसा कुछ भी लोग देखते हैं। वो फैक्टर गलत नहीं है। अगर वो फैक्टर नहीं है, मान लो है ही नहीं, तब भी इंटरकास्ट है या डिफरेंट कास्ट है या डिफरेंट वर्ल्ड की या वर्ल्ड का स्पाउस है, तो आपको मिलेगा कि मून सिक्स्थ में है। ये मैंने बहुत जगह देखा। क्यों है ऐसा? क्योंकि मून से जो सेवन्थ हाउस है वो ट्वेल्थ हो जाता है। ट्वेल्थ हाउस की वजह से एक डिफरेंट दुनिया का इंसान आपका लाइफ पार्टनर बनता है। इस एक पॉइंट से मुझे समझ में आया कि यार इसको तो सुपर इम्पोज करना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आप ही से कुछ भी मनगढ़ंत बोल रहा हूँ। सुदर्शन चक्र बनता ही वो चक्र है, सर्किल में बनता है, D1 D9 सॉरी D1 चंद्र लगन एंड सूर्य लगन, और वो एक सुपर इम्पोज्ड ही होते हैं, वो जो कि एक के साथ एक ही, वो एक इनर सर्किल, आउटर सर्किल एंड द थर्ड सर्किल एक साथ ही बनाए जाते हैं। सो दैट was a big awakening, and this has changed the way I look at horoscopes and the way I understand horoscopes in a very big way. Another example is कि what does your father do? Let's say, so बहुत लोग बोलेंगे यार सूर्य से 10th हाउस देख लो, फादर का करियर है। बट भैया सूर्य से 10th हाउस तो पूरे महीने सबका सेम रहेगा? तो मुझे लगता था यार पूरे महीने सेम रहेगा, सारे फादर सबका सेम थोड़ा ना काम करते हैं। चलो एक आध प्लानट चेंज हो भी गया, बट ऐसे कैसे? ये तो गलत है। बट सूर्य से 10th हाउस देखो, वो कौन सा हाउस बन रहा है तुम्हारे D1 चार्ट का, वो डिफाइन करेगा। अगर सूर्य एर्थ में है तो सूर्य से 10th हाउस फिफ्थ बनेगा, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड करियर होगा तुम्हारे फादर का। वहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं और जो राशि है वो सब भी देखना पड़ेगा। अगर सूर्य 9th में है तो सूर्य से 10th हाउस सिक्स बन जाएगा। सूर्य 10th में है तो 10th से सिक्स, 10th हाउस सेवन्थ बन जाएगा, तो फादर शायद बिजनेस में हो, या फादर 7th हाउस रिलेटेड काम करते हो, अटॉर्नी हो, लॉयर हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सूर्य से 10th ऑफ योर D1, कि D1 में वो उसको सुपर इम्पोज करना है हर चीज़ को। मतलब हर चीज़ को नहीं, चंद्र लगन और सूर्य लगन को D1 पे सुपर इम्पोज करके देखना है। ओनली देन इट विल मेक सेंस। सो नाउ कमिंग बैक टू डिटर्मिनिंग प्रोफेशंस, अपार्ट फ्रॉम दोज फोर थिंग्स, D1 D9 D10 दशा, इन सब के बाद या इन सब के कहीं बीच में, ना दिस इट विल डिपेंड ऑन हाउ यू यूज दीज टूल्स, यू ऑल्सो हैव टू फैक्टर इन द 10th फ्रॉम मून। 10th फ्रॉम मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट 10th फ्रॉम मून जो लॉर्ड है, उसकी दशा में सोशल एक्सेप्टेंस, फेम, सोशल एक्सेप्टेंस, या अगर फेम वाले प्रोफेशंस में इंसान है तो फेम, ये दोनों 10th फ्रॉम मून की दशा में मिलते हैं। All right, chalo, let's quickly now jump into the two horoscopes which I have kept for discussion, and let's try to put these pointers on these horoscopes and see कि uh, कैसे we are able to get to the bottom of the career. All right, so this is the first chart. This is the chart of the Air Force officer, which we saw 7 years back. Leo Lagna. Perfect. Leo Lagna. What is the 10th house here? 10th house is Taurus. 10th हाउस में कौन बैठा है? वीनस। अगर टॉरस और वीनस देखेंगे तो करियर, फाइनेंस, फिल्म्स, मीडिया, यही बोल पाएंगे? गलत है। ये तो एयरफोर्स ऑफिसर है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने 10th हाउस में बैठा हुआ राशि और प्लैनेट को देखा और एक आंसर दिया, विच इज़ रॉन्ग। वॉट वी हैव टू सी कि यहाँ पे कौन सा हाउस कनेक्ट हो रहा है। वीनस इज द थर्ड लॉर्ड इन दिस चार्ट, एंड थर्ड लॉर्ड सिट्स इन द 10th हाउस। सो 3-10 कनेक्शन है। 3-10 कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वीनस अपने घर में है, वीनस वर्गोत्तम है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग 3-10 कनेक्शन। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ पराक्रम। यहाँ से वी कैन जस्ट शॉर्ट लिस्ट दैट द करियर कैन बी connected to the third house. All right, which means use of body, use of parakram, use of physical और communicative measures. Physical मतलब voice या body, दोनों में से एक। सेकेंड चीज़ देखते हैं कि 10th लॉर्ड विच इज़ वीनस नवमांश में कहाँ पे बैठा है। नवमांश में वीनस 12th में बैठा है। वर्गोत्तम है तो राशि तो चेंज होगी नहीं, बट 12th में बैठा है। 12th हाउस मीन्स इट कैन मीन ट्रैवल, इट कैन मीन आइसोलेटेड लैंड्स,
you know, outskirts of a city or a state or whatever. And it can also mean a lot of travel. It can also mean transferable job, right? It can also mean imagination. बट क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइन है तो इमेजिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. अगर यहाँ पे वाटर साइन होता तो थोड़े बढ़ जाते. बट दिस इज़ व्हाट इट शोज. तो वीनस थर्ड हाउस, इस वक्त तक इसके करियर के जो फैक्टर्स हमने जॉट डाउन करे हैं वो है थर्ड हाउस, ट्वेल्थ हाउस, और एक स्ट्रॉन्ग करियर, क्योंकि वीनस अपने घर में वर्गोत्तम होके मालव्य महापुरुष राजयोग बना के बैठ रहा है. स्ट्रॉन्ग करियर कनेक्टेड टू थर्ड एंड ट्वेल्थ इज व्हाट वी हैव शॉर्टलिस्टेड सो फार. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द दशमांश चार्ट. दशमांश चार्ट में आप देखोगे कि इट इज स्कॉर्पियो इन द असेंडेंट. ऑलराइट, और यहाँ से 10th में यू विल फाइंड द फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर विद सन अपने घर में. और 10th दशमांश चार्ट का सेकेंड हाउस विच इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ द करियर हैज़ मार्स. दशमांशा इज रूल्ड बाय मार्स. स्कॉर्पियो इज द फोर्थ हाउस ऑफ D1 chart. Fourth house of D1 chart. Okay. Fourth house is homeland. Fourth house is house, अपना घर, but it's also homeland, masses, घर, आम population. Alright. अब मार्स भी आ गया, होमलैंड भी आ गया, पराक्रम भी आ गया, ट्रैवल भी आ गया. कहीं कहीं से कुछ समझ में आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं आर्म्ड फोर्सेस की, जो कि ट्रैवल है, पराक्रम है, हाई प्रोफाइल जॉब है, होमलैंड है. करियर D10 के सेकंड हाउस में मार्स प्लेस्ड है, जो कि इन्वायरमेंट दिखाता है मार्स वाला, विच इज़ ऑफ मैन एंड मोर मैन देन विमेन, हॉट वेदर्स और एक्सट्रीम वेदर, नॉट जस्ट हॉट बट एक्सट्रीम वेदर्स. एंड वी ऑल्सो कंक्लूडेड फ्रॉम 12th हाउस की ट्रैवल है और आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन है. फोर्थ हाउस एक और चीज़ दिखाता है, और मैंने ये बहुत सारे आर्मी के लोगों में देखा है कि D10 जो है वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं से. या तो फोर्थ हाउस से स्टार्ट हो रहा है जैसे जैसे इस केस में है, या D10 का फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में है, और समथिंग एल्स विच इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट फोर्थ हाउस थीम. नाउ व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फोर्थ हाउस is also the house of homeland, and it is the house of security. जबकि भाई as safe as houses बोलते हैं, तो अपने घर ज़्यादा सेफ कुछ नहीं है. तो people who are into security of the homeland will have a connection of fourth house, strong fourth house connection in the D10 chart. Now another thing which is important here is that the sixth house is the house of service, which we all know. उस पर भी नज़र डाल सकते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑलवेज, बट यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में ही फोर्थ लॉर्ड जाके एग्जॉल्ट होकर मार्स बैठा है, क्रिएटिंग द शत्रुहंता योग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. मार्स इन सिक्स्थ, इससे बड़ा शत्रुहंता योग नहीं बनता. सबसे अच्छा शत्रुहंता योग लियो लग्न में ही बन सकता है, जो कि यहीं पे मार्स एग्जॉल्ट होता है, और राजा के ही लिए सबसे अच्छा. लियो इज़ द किंग and the senapati is a sixth house exalted, so this is the best possible thing. The service of Mars again, sixth house is house service where Mars is placed, it again shows that. इन सब के बाद भी इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन है, अगर ये चार्ट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इसमें एक दो चीज़ें आ रही हैं. और एक तरफ तो ये लग रहा है कि हम थर्ड हाउस से पराक्रम देखें या कम्युनिकेशन देखें. मतलब ये इंसान मीडिया में भी हो सकता है, जो कि फोर्थ हाउस ही मीडिया में इंक्लूडेड है. फोर्थ हाउस अगेन शोज मासेस, तो वहाँ भी हो सकता है, या तो ये आर्मी में हो सकता है या पुलिस में हो सकता है. इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट हम कर पाए इस बात से कि मार्स सिक्स्थ में बैठा है, सर्विस में मार्स है, और D10 के सेकंड हाउस में भी मार्स है, जो कि दिखाता है कि मीडिया में होने में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा विच इज़ वेरी एक्सट्रीम और हॉट ब्लडेड और एक्सेट्रा, वो नहीं मिलेगा. सिक्योरिटी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा. तो एक थोड़ा सा टिल्ट हुआ माइंड विच गोज टूवर्ड्स and it's a high profile job because of 10th in 10th, and Venus being Vargottam and giving a Mahapurush yoga. थोड़ा सा टिल्ट हुआ. इस अगेन वी हैव 2-3 ऑप्शंस. बट जैसे ही आप दशा देखोगे, जब इसका करियर स्टार्ट हुआ, that was in 2007, that was when he was selected in NDA. You will find the dasha of Saturn starting. Now Saturn is the 6th and the 7th lord.
विच शोज़ कि ये दशा इंसान को, ऑल्दो वीनस 10th में बैठा है तो विच शोज़ अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ऑल्सो, बट इस दशा में कंफर्ट नहीं मिलेगा तो ये मीडिया नहीं हो सकता, ये मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ हाउस का जो रोल है वो एक एसी केबिन में बैठ के मास कॉम वाला रोल नहीं है, क्योंकि ये दशा ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिजिकल आउटपुट डिमांड करेगी, बिकॉज सैटर्न इज़ द 6th एंड द 7th लॉर्ड। तो फिर यहाँ पे हार्डशिप्स हैं, फिजिकल हार्डशिप्स हैं, और बैठा 5th में है, विच अगेन शोज पब्लिक मनी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काइंड ऑफ अ कनेक्शन एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, जो उस कनेक्शन को 5th हाउस को मजबूत कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, टिल्ट हो रहा है अभी आपका आंसर मोर टूवर्ड्स द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अभी तक हम मीडिया और आर्मी में थे, या पुलिस भी था, चलो पुलिस को कम मानो, बट मीडिया और आर्मी में थे। बट सैटर्न की दशा ने थोड़ा आर्मी की तरफ टिल्ट कर दिया ज़्यादा। तो अगर मुझे एडवाइस देना, अगर मैं उस इंसान को जानता हूँ, तो मैं बोलूँगा यार तुम एनडीए में ट्राई करो, ना कि मास कॉम में। फाइनल थिंग जो भी मैंने बात करी, चंद्र लगन। अब अगर चंद्रमा से 10th हाउस देखोगे, चंद्रमा इज इन द 7th, चंद्रमा से 10th इज द 4th हाउस अगेन, विच अगेन शोज मासेस एंड पब्लिक एंड सिक्योरिटी एट्सेट्रा। बट उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है? 6th हाउस में बैठा है। इसको अगर आइसोलेशन में देखते इस चंद्र लगन को, तो चंद्रमा से 10th लॉर्ड हमें 12th में दिखता। ये देखो, मार्स इन 12th। दिस इज नॉट द वे यू हैव टू सी द चंद्र लगना। द वे यू हैव टू सी इट इज, चंद्रमा से जो 10th लॉर्ड है, 10th साइन है, विच इज स्कॉर्पियो, द लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो गोज टू द 6th हाउस ऑफ D1, विच सील्स द डील। 6th हाउस, बात खत्म। आर्म्ड फोर्सेस, मार्स एक्सॉल्टेड, सिपाही ही है वो, ही इज अ सिपॉय, मतलब सिपॉय बोलना गलत है, बट ही इज द पर्सन हु गोज इनटू अ फोर्स। दिस इज बिकॉज ऑफ, एकदम दिस विल जस्ट सील द डील फॉर यू। तो यू कैन डू दीज, फॉलो दीज स्टेप्स इन योर चार्ट्स, यू विल अंडरस्टैंड कि ये एकदम ही फाइन ट्यून कर देता है। चंद्रमा से 10th जैसे ही देखोगे, इट विल कंप्लीटली point you towards maximum two options and not more than that. Okay, dasha and chandrama say 10th will seal the deal for you guys. Okay, now this dasha, he has lived his Saturn dasha almost, it's still 2026, right? So continuously he got promoted, he did very well at the NDA, because it's in the 5th house of education. तो NDA में जो first 3 years की teaching training होती है, he did well there. Currently he is the wing commander. He was posted in Assam, in Kashmir. Currently he's somewhere in Punjab, if I'm not wrong. So regular promotions and everything happened. Marriage happened. You know, they don't have kids, and they have decided that they don't want kids, which is a very important theme, which is, you know, happening so often these days in multiple different people, couples life. They are deciding to not have kids. He also happened to decide that. Now we can see that Saturn in the 5th is not really good for progeny, and it is retrograde, it is very powerful, and it is the dasha lord, it is running the dasha, so it is kind of stopping it from happening. It will not happen for everybody. जो Saturn in 5th, तो ये 2.5 साल रहेगा in Leo, और बहुत सारे लोगों में you will find that. बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी आपको चंद्र लगन से देख के इस पर्टिकुलर पॉइंटर को रीकन्फर्म करना है ना। चंद्र से 5th इज 11th हाउस, okay, and the lord of 11th is in 8th. See, it's in 8th and it is debilitated. So lagna se 5th house has malefic Saturn. Chandra से 5th house lord is debilitated, combust, and in the 8th house तो मन ही नहीं है, जो कि चंद्रमा मन का कारक है, तो उस चीज़ का मन ही नहीं। Although this is not a part of our podcast, this is we are discussing careers here, but just to give you an insight of how to see the Chandra Lagna, right? Chandra say 5th house is the 11th, which is Gemini here. The Lord of 11th Gemini is in 8th house, which and debilitated. Mercury is debilitated and Mercury is combust. तो चंद्रमा से 5वें का मालिक अष्टम में बैठा है, नीच का है, अस्त है, और चंद्रमा से 5th पर सैटर्न का एस्पेक्ट है। बर्बाद कर दिया है चंद्रमा से 5th हाउस को इन अ वे।
so that shows कि बच्चे का मन नहीं है. But because 5 and 11 are, 5 and sorry, 11th lord and first lord and second lord are, are conjunct Mercury sun. So 11th के जो बाकी other factors हैं like salaries and growth etc, तो वो होती रहेगी. बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते आर्मी वाले, so they cannot be similar to, let's say, an entrepreneur or a businessman. So this again shows. Okay, so this is the second chart. This chart is of an army officer. As you can see, mean Lagna and moon sign is Scorpio. So quickly we can, in continuation with the last chart, we can very easily see that the only aspect on the 10th house is of Venus, right? Yeah, no other aspect. Ketu doesn't have an aspect as far as my understanding goes. Rahu has aspects, Ketu doesn't have an aspect. So Venus is the only aspect of the 10th house. Venus is the lord of the third house again, right? It is in line with the last chart. Even there Venus was third lord sitting in 10th. Here Venus is the third and the 8th lord sitting in 4th, aspecting 10th. So the 10th house has aspect of Venus, which is the lord of 3rd and 8th. So it will include, it will bring with it both the energies. Okay. Now, point to be noted here is that this guy went into engineering, into army through CDS, that is after graduation. The Air Force guy cleared the NDA examination, which is after class 12th. So his career started slightly late, right? This army guy's career started slightly late. Apart from that, the 10th house is connected with the 7th house because the 10th lord sits in the 7th house. Okay. Now the 7th house can show dealings, business transactions, contracts, all of these things, which is not directly, shows an army career. But point to be noted here is that the 10th lord is in the 6th sign of Virgo. So the 10th house has some energies of the 6th sign because of the placement of Jupiter in Virgo. तो दो चीज़ें हमने अभी डिसाइड करी हैं सिर्फ D1 चार्ट से. 10th लॉर्ड के ऊपर 3rd और 8th का एस्पेक्ट है वीनस का 10th हाउस के ऊपर, और 10th लॉर्ड 7th में बैठा है वर्गो में, विच इज़ द 6th साइन. Alright, now let's go to the Navamansha chart and see where the 10th lord, which is Jupiter, where does Jupiter sit? Jupiter sits in the 4th house and the sign here is Aries. Again, 4th house is the house of homeland, home territory, country, and also the people of the country. Aries sign is the sign of physicality, body. So it shows that there is some body element, Aries element, and Aries is ruled by Mars. So again, Mars rules आर्मी एंड आर्म फोर्सेस. सो वहाँ से थोड़ा बहुत कनेक्शन मिल रहा है. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी कुछ नहीं दिख रहा अभी. इफ़ आई वॉज लुकिंग एट दिस चार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर सीइंग D1 एंड D9, मैं ये कह सकता हूँ कि करियर जो है वो 7th हाउस और 3rd हाउस से रिलेटेड है, 8th से भी रिलेटेड है टू सम एक्सटेंट. 8th कैन शो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं आपको बताऊंगा कैसे आया. एंड 3rd हाउस जो है वो पराक्रम एंड फिजिकलिटी. अगेन यहाँ पे नवमांश में भी एरीज आ गया, तो 3rd हाउस का फिजिकलिटी वाला एलिमेंट डबल चेक हो गया. अगर यहाँ एरीज नहीं आता, मान लो यहाँ पे जुपिटर 4th में होता बट पाइसेस में होता, और लियो में होता, तो 3rd हाउस का जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग का एलिमेंट है, वो आ जाता. ठीक है. Anyway, so from D1 and D9 we can conclude 3rd, 7th, 8th, Aries, Virgo here. Aries, Virgo, Sagittarius, these signs, which doesn't really clearly show that some person will be in army or not. But let's just point, when we are analyzing charts, we have to quickly just keep these pointers in our mind and move ahead to the next divisional chart, which is the D10 chart. Okay, so D10 में चलते हैं. D10 chart
स्टार्ट हो रहा है थर्ड हाउस ऑफ जेमिनाई से, थर्ड साइन ऑफ जेमिनाई, तो मतलब थर्ड फिर से री एम्फेसाइज हो रहा है यहाँ पर आके। ठीक है, और ये जेमिनाई क्या है D1 चार्ट में? D1 चार्ट रिमेंबर वाज पाइसेस असेंडेंट, तो पाइसेस का फोर्थ हाउस है। तो हमने दोनों चार्ट्स में देखा, इन द एयरफोर्स ऑफिसर चार्ट एंड ऑल्सो इन दिस चार्ट, द फोर्थ हाउस बिकम्स द D10 राइजिंग, because the fourth house shows territorial conditions of the house, of the homeland, home boundaries, country, basically in simple language, and security. यहाँ पे भी थर्ड आ गया, यहाँ पे भी फोर्थ हाउस का रोल आ गया। थर्ड से हम पराक्रम डिराइव कर रहे हैं D1 से। D1 में हमने पराक्रम और कम्युनिकेशन दोनों रखा। D9 में एरीज आ गया तो हमने कम्युनिकेशन काट दिया। D10 में फिर से वो आ गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वापस से हम कम्युनिकेशन में आए, क्योंकि ये साइन जो है वो जेमिनाई है, ऐसा नहीं है। जो D9 से जो जो कंफर्मेशन मिला उसको रिकन्फर्म कर रहे हैं D10 में। ओके, अगेन द 10th लॉर्ड ऑफ D10 चार्ट सिट्स इन द साइन ऑफ वर्गो, अगेन सिक्स्थ री-एम्फेसाइज। ओके, D10 का लग्नेश goes to the 12th house. We saw the 12th house connection in the chart of the Air Force officer also, and the deduction which what we deduce out of that was कि ये भी आउटस्कर्ट्स में रहेंगे, ट्रैवल बहुत करेंगे, आइसोलेटेड प्लेसेस में करियर लेके जाएगा। D10 में है तो करियर ही है, तो करियर आइसोलेटेड प्लेसेस में लेके जाएगा। केतु के साथ है वो अगेन डिटैचमेंट आइसोलेशन दिखाता है। ये बॉर्डर पे रहते हैं या कहीं बाहर कैंटोनमेंट में रहते हैं, तो विच इज़ नॉट द सिविलियन लाइफ। ओके, सेकेंड हाउस ऑफ D10, इट shows the environment of the job, what kind of people you will deal with there, in simple words. If you look at it here, in that Air Force officer's chart, we saw Mars in the second house. Here, exalted Mars is aspecting the second house from Earth, right? Second lord is in the sign of fire. It's in a fire sign, which is Sagittarius. So Mars and fire sign दोनों मिला के हमें मार्शल conditions ही दिखा रहा है, मार्स की conditions ही दिखा रहा है in the 10th house, in the second house of the D10 chart, sorry. ओके, अभी भी हम क्या डिड्यूस कर पाए? D1 से वी गॉट थर्ड हाउस, वी गॉट द सिक्स्थ साइन। D9 से वी अंडरस्टूड दैट द थर्ड हाउस एनर्जी, third house has two energies of communication and parakram, courage, strength, valor. Parakram का right word would be valor. But D9 told us कि ये communication वाला third house energy नहीं है, ये energy एरीज वाले से related है, तो फिर ये पराक्रम वाली एनर्जी ज़्यादा है, वैलर वाली एनर्जी ज़्यादा है। Okay, then D10 told us, again the third house repeats because Gemini is the rising, which is the fourth sign of D1, which shows masses and security and homeland, and Mars aspect second house. तो हमें थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि सॉफ्टर स्किल्स की तरफ करियर नहीं जा रहा है, मतलब ये कम्युनिकेशन एंड मीडिया की तरफ नहीं जा रहा है। ये थोड़ा सा हार्डर जो बॉडीली रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है, उधर जा रहा है। या सिक्स्थ हाउस, जो कि वर्गो साइन, यहाँ भी 10th इन सिक्स्थ है, सॉरी 10th लॉर्ड इज़ इन वर्गो है। D1 में भी 10th लॉर्ड इज़ इन वर्गो है, एंड इन दोनों से एक सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा है, जो कि विच कैन शो अपोजिशन एट वर्क, विच कैन शो आर्मी, बिकॉज वी नो दैट दिस गाइज एन आर्मी ऑफिसर. इट कैन ऑल्सो शो लॉ and a litigation lawyer in some cases. Okay, but because Saturn ka role is very weak, Saturn is the Karaka, Saturn Jupiter both shows law mostly, but because Saturn is very weak, it is debilitated in the second house, has no connection with anything, so law थोड़ा सा diluted है. but अगर अभी इस point पे एक inference draw करना है after seeing D1, D9, D10, we will still say that there is a possibility of law or पुलिस और आर्मी, राइट. यहाँ पे एक लॉ का एक एलिमेंट है अभी तक. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स गो टू द फोर्थ स्टेप, विच इज ऑफ सीइंग द महादशा. ओके, सो जिस टाइम पर this person was born in 1969, so around the age of 21, 23, whatever, जो जिस एज में CDS क्वालिफाई होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, ही वॉज अंडर द केतु महादशा, एंड द नेक्स्ट महादशा वॉज ऑफ वीनस, विच 20 years.
Okay, the majority of the service will be in Venus Mahadasha, but the initiation will be in Ketu. Now, in order to go to a force, as I said in the last chart, one has to go through a dasha which is tough on the body. It cannot be a very easy dasha, very comforting dasha. At least in the beginning, when the life really changed, because from your house you go to, the army कैंप वॉट एवर इट इज़. सो इनिशियली तो जैसे उस एयरफोर्स के चार्ट में तो 19 ईयर्स की सैटर्न दशा थी, तो इट वॉज वेरी क्लियर. यहाँ पे व्हाट वी सी इज दैट केतु दशा इज रनिंग एट द टाइम विच इज द सिक्स हाउस. अगेन सिक्स हाउस शोज it's a रोग भाव. It shows that रोग भाव doesn't really mean disease. It shows that the body will be under some kind of stress, some kind of strain. So केतु ने वो भी दिखाया. Now this dasha sort of also to some extent मेक्स अस बिलीव दैट लॉ में तो इतना रोग इतना स्ट्रेन तो होता नहीं है, तो लॉ के चांसेस यहाँ भी कम होते हैं. एक और तरह से लॉ के चांसेस कम हो रहे हैं, वो सैटर्न है जो मैंने बताया. और सिक्स हाउस की दशा जब आती है इन योर अर्ली 20s, पीपल गो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो बैक इन द लेट 80s लॉ वॉज, आई मीन दिस क्लैट एंड नेशनल लॉ स्कूल्स वर नॉट देयर. सो उस टाइम पे तो लॉ का कंपटीशन नहीं था, बट हाँ आर्मी का था. इट वाज वेरी सॉट आफ्टर. तो इट पुशेस यू टूवर्ड्स army more than law at this stage. Now let's see the final pointer, which is the 10th from moon, which I just told you guys, which this is something which I was not really incorporating 7 years back in my analysis, but now I do. So let's just take 10th from moon. So 10th from moon, moon is in the sign of Scorpio. 10th from moon is the 6th house of this D1 chart, which is Pisces. Again, it brings you to the 6th house. 6th house having Mercury, Ketu and Sun. Okay, so again, the entire chart has energies focused on 3rd house, 6th house, 3rd house, 6th house, 3rd house, 6th house. हर जगह D1, D9, D10, 3 6 3 6 repeats. The only other chart only other house which pops up is the 4th house, which can be deduced to show territorial boundaries, masses, security, because we say as save as houses. So 4th house is the house of security in general for everybody. तो वहाँ से we can see. And the next Mahadasha after Ketu will be of Venus. Again, 3rd lord and 8th lord. But where is Venus placed? 4th house. Again, security, homeland. होमलैंड में 3rd हाउस की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ की, वैलर की. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वीनस जेमिनाई में है, विच इज़ अगेन द 3rd साइन ऑफ द जोडियक. अगेन 3rd हाउस की एनर्जी लेकर आ रहा है लाइफ के अंदर. 4th में बैठा है. ही ऑलवेज हैड बिग हाउसेस, आर्मी पीपल गेट गुड हाउसेस इन cantonment areas and all. And since I know about him, this guy was into buying. I mean, when army buys stuff, right, from outside world, they buy food and all different kinds of things, whatever they need, right? So he never went on the front. He was not he was not into combative forces. He was into buying and procuring resources, which is more of the business side of army. This is how the 10th lord in 7th house is getting justified in this chart, in the sign of Virgo. So Virgo से 6th आ गया. 7th हाउस से जो एनर्जी आई वो डील मेकिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग एक्सेट्रा, वो जो 7th की एनर्जी वो आई. 8th की एनर्जी भी आई इसमें, because he decided to quit the army in 2014-15, somewhere around that time, and he started his own business, and the business did not work that well. So then he went into because ex-army men get jobs in corporates and all. So he currently works in the corporate, and he's into training and those kind of stuff at high level. He also did his MBA later on from IIM. So that was I mean, for army people, IIMs have some separate courses and all. So he went for that, and after that he got a corporate job.
So in till the end of Venus Dasha, mostly he did his service because that was the third lord. As soon as Venus ended, sometime in Sun Dasha, he decided to quit. Sun Dasha, I think that also overlapped with Sadesati, if I'm not wrong. And then in Moon Dasha, he got a good, a very separate kind of a career into training and human resource, etc. So the eighth house energy of Venus is aspecting the 10th house. This shows transformation. That's how the transformation happened, and he quit the army. He did not continue till the age of 60. He quit some years before that. Not a I mean, he had a long service in which ways, but still he quit. He took a voluntary retirement. So this is how it pans out. Now you can see, just to give you a bit of a recap, third lord Venus aspecting 10th in the chart of the Air Force officer. Again, third lord Venus aspecting 10th, but there Venus was also the 10th lord. He got the highest service, which is Air Force. This guy got army. This guy had different aims in life. So after 20-25 years of service, he quit the army. His 10th lord is in 7th house, which that is the reason why he went into the transactions side of the army, and he was into procuring resources and buying materials and stuff. That is how the chart really opens up if you look at it from these different angles. So D1, D9, D10, in order to see the detailed career life and how the career will be, we can see other house of the D10 chart as well. D10 और ज़्यादा रोशनी डालेगा on the chart कि exactly क्या होगा, कैसे होगा. So yeah, after the dasha of Venus ended, Sun started. He changed his career completely. So yeah, I think this is enough. If you like my analysis, if you want to watch more videos, please like this video, subscribe to my channel, and stay connected. I will try to post at least one video every 10-15 days, and all the videos will be as detailed as this one. And remember to look at your own Chandra Lagna and see where the 10th house from Moon falls. In order to see your father's profession, see the 10th house from Sun. Now, in this chart, let's take this example. His father is also a retired army officer. He completed his entire service. So his Sun is in 6th house. The 10th from 6th is the 3rd house. See, it's the 3rd house where Taurus number 2 is written. And his father was again in the 3rd house related field, which is army. But if you look at the Sun Lagna in isolation, and you will see, okay, the 10th lord is Venus, and you will not find anything. And this entire Sun Lagna will remain the same for the next 1 month, because Sun is as at 4 degrees right now. It has to travel 26 more degrees, so it will remain there. All planets will virtually remain here only. Only Moon will change after a day. Venus will change after a couple of days, and then it will stay where it is. So, but if you look at it from if you superimpose this Sun Lagna on the Janam Lagna, then you will find that the 10th from Sun goes to the 3rd. 3rd house is the house of valor and strength and parakram. That is why his father was in the army, retired army officer. So yeah, I think this is enough, and I'll get back to you guys with more interesting videos. Please like, subscribe, share with your friends and enthusiasts. Yeah, thank you. Bye bye.